روشن ہے شمع اردو پروانے آ گئے ہیں، ہر گوشے جہاں سے دیوانے آ گئے ہیں، جامو صبح و کاسا و پیمانے آ گئے ہیں، سب شیخ و برہمن میخانے آ گئے ہیں۔ صدر مشاعرہ محترم کلدیپ نیر صاحب، مہمان خصوصی لیفٹیننٹ جنرل سمیر الدین شاہ صاحب، شعراء کرام اور دوستوں، جشن بہار میں ہم آپ سب کا ایک بار پھر استقبال کرتے ہیں۔ اردو ایک مکمل تہذیب ہے، مشاعرے جس کی علامت ہے۔ مشاعرے جہان اردو کی ایسی انوکھی روایت ہیں جن میں ادب و تہذیب کے چاہنے والے کھلے دل سے شرکت کرتے ہیں، شاعری کا جشن مناتے ہیں، ایک ایسا جشن جس کی مثال کسی دوسری زبان میں نہیں ہے۔ روحانیت ہو یا رومان، غم جانا ہو یا غم دورہ، شاعر بے باکی سے اپنا کلام پڑھتے ہیں اور سامعین لطف اندوز ہوتے ہیں اور خاطر خواہ پذیرائی کرتے ہیں۔ مشاعروں کو شاعری کی پہلی تنقید گاہ کہا گیا ہے، جس کے قاعدے قوانین شروعاتی دور سے ہی طے کر دیے گئے تھے، ان پر عمل کرنا ضروری تھا اور خلاف ورزی گستاخی مانی جاتی تھی۔ میر مشاعرہ کا انتخاب، شاعروں کے بیٹھنے، انہیں کلام سنانے کے لیے مدعو کرنے، غزل سنانے کا سلیقہ، داد دینے کا طریقہ اور داد ملنے پر شاعر کا مشکور ہو جانا، یہ سب کچھ اتنی باریکی سے طے کیا گیا تھا کہ مشاعروں کی اپنی خاص تہذیب تیار ہو گئی تھی۔ داد دینے کی بجائے اگر جوش میں آ کر سامعین نے تالی بجا دی تو اسے مشاعرے کے آداب کے خلاف مانا جاتا تھا۔ اس لحاظ سے نشست و برخاست کا سلیقہ سیکھنے کی درسگاہ بھی یہی مشاعرے تھے۔ بدلتے وقت کے ساتھ ان قاعدوں میں تبدیلیاں ضرور آئی ہیں، لیکن مشاعروں کی مقبولیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور اس بات کی دلیل ہے آپ سب کی موجودگی۔ مشاعروں کے اسی روایتی تسلسل کو قائم اور دائم رکھنے کی غرض سے جشن بہار گزشتہ 17 برسوں سے کوشاں ہے۔ 17 سال کے اس سفر کے دوران اکثر ذہن میں ایک سوال اٹھتا تھا کہ یہ کاوشیں کہیں رائیگاں تو نہیں، مگر ہر مرتبہ جواب ایک ہی ہوتا تھا کہ مشاعرے ضروری نہیں بلکہ بے حد ضروری ہے۔ اردو کے عوام تک پہنچنے اور مقبول ہونے کے مختلف راستے اور حوالے ہیں۔ ہماری نظر میں مشاعروں سے زیادہ مقبول کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ اردو زبان جس جمہوری مزاج کی وجہ سے خواص اور عوام میں مقبول ہے، مشاعرے اسی ڈیموکریٹک مزاج کے عکاس ہیں۔ میر نے کہا کہ شعر میں وہ خواص پسند پر مجھے گفتگو عوام سے ہے۔ مشاعرے ہر قسم کی تفریق اور تقسیم کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس میں شریک ہونے والوں کا مذہب بس ایک ہی ہوتا ہے، وہ ہے مذہب دل۔ مذہب تو بس مذہب دل ہے، باقی سب عیاری ہے۔ جشن بہار اسی کی تبلیغ کرتا ہے۔ یہاں فرقوں کا کانفلکٹ نہیں، فرقوں کی آمیزش ہوتی ہے۔ یہاں طبقات کی کشمکش نہیں، طبقات کا اتحاد ہوتا ہے۔ یہاں تنگ نظری نہیں، رواداری کا بول بالا ہوتا ہے۔ یہ کشادہ دل، کشادہ ذہن والوں کی بستی ہے۔ جب تک دنیا میں اہل سخن اور شعر فہم موجود ہیں تو دلداروں کی بستی میں ایسی ہی محفلیں آراستہ ہوتی رہیں گی، اور مشاعروں کی افادیت بھی
कायम रहेगी। जो लोग उर्दू को एक खास तबके की ज़बान समझते हैं, उन्हें मुशायरों में आना चाहिए। यहाँ इस्लाम और कुफ्र कुछ नहीं आता ख्याल में। तारीख जानती है और ज़माना गवाह है कि अपने बुनियादी दौर से ही उर्दू ज़बान हमारी सेक्युलर वैल्यूज़ की हिफाजत कर रही है। गुलो बुलबुल हो, जामो मीना हो, साहिल और तूफान हो, या फिर आशियाँ और बिजली, उर्दू गज़ल और नज़्म के बेशतर सिंबल्स आज़ाद ख्याली और इंसानी कदरों में रचे बसे हैं। उर्दू वालों ने कुशादा दिली, कुशादा ज़हनी की जुस्तजू को शेख व बिरहमन की नसीहतों और दैरो हरम की ख्वाहिशों से अव्वल माना है। शेख के पास है अब सिर्फ मुसल्ला बाकी, और हमारे पास है उर्दू ए मुअल्ला बाकी। मुंशी प्रेमचंद, कृष्णचंद्र और राजेंद्र सिंह बेदी की कहानियां हों, पंडित ब्रजनारायण चकबस्त, दयाशंकर नसीम, और रघुपति सहाय फिराक के अशार हो, या फिर मीर के नश्तर, गालिब की सरकशी और मौलाना आज़ाद की वतन परस्ती हो, उर्दू का ये खजाना हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का सिक्योरिटी डिपॉजिट है। आज उर्दू पढ़ने लिखने वाले चाहे कम हो रहे हों, पर उर्दू बोलने वालों की तादाद बढ़ रही है। मजा ये है कि हिंदी लिख रही है, मगर ये नस्ल उर्दू बोलती है। उर्दू सीखने और समझने की ललक लगातार बढ़ रही है। बहुत से इदारे इस ओर काबिले तारीफ काम कर रहे हैं। लखनऊ के सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च की हालिया रिसर्च ने एक दिलचस्प बात खोज निकाली कि उर्दू पढ़ पाना, उर्दू अशार को समझना और याद रखना ज़हन साजी का एक उम्दा जरिया है। क्योंकि उर्दू दाएं से और हिंदी बाएं से लिखी जाती है, तो दोनों जबानों को साथ साथ जानना ऐसी दिमागी वर्जिश है जिससे अल्जाइमर्स और डिमेंशिया जैसी बीमारियां दूर रहती हैं। तो नस्लें नौ हो या फिर नस्लें हम सब, उर्दू जानना, उर्दू शायरी से इश्क करना हर तरह से मुफीद है। वैसे भी अगर इश्क करना हो तो उर्दू सीखिए, और अगर उर्दू सीखनी है तो इश्क जरूरी है। हमारा हिंदुस्तान समंदर की मानिंद है, जिसमें आने वाली तमाम ख्यालो फिक्र की नदियां जम हो जाती हैं। अंग्रेजी एक विदेशी जबान है जिसका इस्तेमाल हम गर्मजोशी से करते हैं और फख्र महसूस करते हैं, पर ताज्जुब ये है कि दूसरी जानिब उर्दू, जो हमारे खमीर में शामिल है, जो हिंदुस्तान में पैदा हुई और यहाँ परवान चढ़ी, हमारी माओं के होठों पर लोरी बन के मछली, हमारे आबाओ अजदाद की शफकत में ढली, उसके साथ हम सर्द महरी से पेश आते हैं। ये समझना ज़रूरी है कि हम अगर विरसे में मिली इस तहजीब को, इस ज़बान को आज विदेशी कह रहे हैं, तो क्या हम अपनी पहचान से इनकार कर रहे हैं? आखिर अपनों पे सितम करके गैरों पे करम क्यों है? उर्दू के तई बेरुखी शायद इसलिए है कि हम अपने हुकूक तो चाहते हैं, लेकिन अपने फराइज़ अंजाम नहीं देते। हमने रियायतों को ही ज़बान का मुकद्दर तस्लीम कर लिया है। हम ये भूल जाते हैं कि सरकारें रियायतें दे सकती हैं, सरकारें
फैसिलिटीज मुहैया करा सकती हैं, ज़बानें राइज भी कर सकती हैं, पर उनको रवा रखता है वो मुआशरा जहां उनकी आबियारी होती है। ज़बान उर्दू और इससे वाबस्ता क़दरों को, रिवायतों को जिंदा रखना हमारी जिम्मेदारी है। मुशायरे इस खालिस हिंदुस्तानी ज़बान को जिंदा रखने में एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। हर साल की मानिंद इस साल भी उन दोस्तों की एक तवील फहरिस्त है जिन्होंने आज की बज़माराई में दामे, दिरमे, कदमे, सुखने हमारी मदद की। मुशायरा जश्न बहार का नाम दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड के साथ सिनोनिमस है। प्रिंसिपल जनाब M.I. हुसैन इंतहाई खुशदिली के साथ हमारी राहें हमवार करते रहे। DPS एक ऐसा इदारा है जहां उर्दू पढ़ाई जाती है और हमारी तहजीब बाकायदा नस्ल नौ तक पहुंचाई जाती है। हर बरस की तरह इस बार भी हुसैन साहब, आपने और आपकी टीम ने हमारी बहुत मदद की, बहुत शुक्रिया। जश्न बहार के सकाफती सफ़र के दौरान इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस का पुरखुलूस ताउन हमारे लिए फख्र की बात रही। हम डायरेक्टर जनरल सतीश मेहता साहिब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस बरस भी जश्न बहार को ICCR के हमराह काम करने का एजाज़ बख्शा। सुलभ मूवमेंट के बानी डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक एक अहद साज शख्सियत के मालिक हैं। आजकल आप स्वच्छ भारत मिशन में सरगर्म अमल हैं। आपकी मुसलसल कोशिशों से हिंदुस्तान में सैनिटेशन का इनकलाब आया है। आपने शुरुआती दौर से ही जश्न बहार की मदद की है। M.R. मुरारका फाउंडेशन के कमल मुरारका की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। आप रसिक हैं, सुखन फहम हैं और फराख दिल हैं। आपकी उर्दू दोस्ती जश्न बहार के लिए बादे बहारी से कम नहीं। अदब परस्त एजुकेशनिस्ट तक्षशिला के सरबराह संजीव कुमार अपने स्कूलों के जरिए बच्चों में तहजीब और तालीम की बुनियाद डालते हैं। आपकी सरपरस्ती में कल हम पटना में भी जश्न बहार का इनकाद कर रहे हैं। ओवरसीज इंफ्रास्ट्रक्चर के सुरेश चतुर्वेदी मुश्तरका तहजीब की अहमियत को समझते हैं। आप यहाँ तशरीफ फरमा है, बहुत शुक्रिया सुरेश। आपकी हातिम दस्ती और अदब नवाजी ने हम पर जमीन कभी तंग न होने दी। अंबुजा निवेचिया के सुरेश निवेचिया जश्न बहार के ऐसे रफीके कार हैं जिनकी समाजी और अदबी खिदमात पर एक पूरा दफ्तर तैयार हो सकता है। टाटा सन्स के प्रिंसिपल रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव संजय सिंह हमेशा की तरह हमारी मदद के लिए राजी हो गए। उनकी पैरवी रंग लाई और हमारी मंजिलें सहल हो गईं। और इस मुकदमा शेर व शायरी की जीत का सिलसिला माहिर कानून सुहेल खान को है, यही कहीं है। जश्न बहार का लोगो और बैकड्रॉप ट्रस्ट के पेट्रन और हमारे तहरीना रफीक M.F. हुसैन की तेज तर्रार रश का कमाल है। उनकी यादों को सद सलाम, शत प्रणाम। पहले मुशायरे से आज तक स्टेज को खुशनुमा बनाया है अनिल तातो ने। इस खुले मैदान को शायरी के काबिल बनाया है सादिक अहमद ने। तो मिलता है जिनसे राह न बर्दों को हौसला, मेरे लिए वो लोग भी मंजिल से कम नहीं। दोस्तों, सरहदें सियासत की देन है और वुसअतें हम कलामी का समर। आज जश्न बहार में अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चीन और सऊदी अरब से आए शुअराए कराम मौजूद हैं। हम आप सब का सरजमीन उर्दू पर खैर मकदम करते हैं।